Welcome to Graduate Guru. We are starting with a new session of the chapter differentiation. Now, till now, we'll say the first part of the chapter is done. That was based on what? Derivatives. Now, the next part of the chapter, we will consider that as application of derivatives. मतलब जो derivatives हमने सीखा, now we'll see the application part of it. And in order to understand that, we need to first understand few terminologies. जैसे कि demand होता है, supply, then we have cost, revenue, profit. All this are very important from economics point of view. So यहाँ पे जब application of derivatives बोला जाएगा, it is the application in what? In terms of economics. So यहाँ पे we'll say demand जो होता है is a function of price. So if demand is a function of price, we can express it as D is equal to F of P. So marginal demand, see marginal अगर ये word आता है, then we need to understand कि ये marginal का मतलब होता है slight change, and ये slight change का मतलब होता है rate of change, and rate of change of one quantity with respect to another quantity is called as derivatives. ये हमने सीखा है. Rate of change of one variable with respect to another variable, we say this is called as what? Derivatives. So marginal demand अगर ये बोला तो ये हो जाएगा rate of change of demand function with respect to what? Price, क्योंकि demand is a function of price. So यहाँ पे सबसे first टर्म हमें जो समझना है, सबसे पहले तो यहाँ पे हेडिंग दे गया as what? Application of derivatives लिखेंगे. In that we need to understand certain terms. तो पहला टर्म आ जाएगा as what? Demand function. So यहाँ पे लिखेंगे demand is a function of price and it can be expressed as D is equal to F of P आ जाएगा. And when we say demand is a function of price, ये P के टर्म्स में है, so marginal अगर ये वर्ड आता है मतलब rate of change होता है. marginal का मतलब क्या है? rate of change. तो यहां पे आएगा rate of change of marginal. क्या बोला है? demand. मतलब rate of change of demand function आ जाएगा. so यहां पे मैं लिखूंगा the rate of change of demand function with respect to price. Yes, the rate of change of demand function with respect to price is called as marginal demand, and we express that as m dot d in short में बोला जाएगा, and यहां पे लिखा जाएगा dd upon dp. so ये हो गया marginal demand is equal to dd upon dp, and this can also be written as f dash of p. क्यों ऐसा? क्योंकि हमने ये d is equal to f of p बोला है, and अगर मैं इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं with respect to p, ये हो जाएगा dd upon dp which will become f dash of p. तो उस हिसाब से ये कंडीशन आ जाएगा. तो ये हो गया हमारा फर्स्ट टर्म. Now we'll understand the second term over here, that is supply function. Yes, तो supply function के लिए हम लोग यहां पे लिखेंगे supply is also a function of price. तो ये जो supply है, this is also a function of price, and it can be expressed as
सप्लाई है तो S से डिनोट करेंगे, एंड सिंस वहां पे ऑलरेडी F ऑफ P लिख दिया है तो यहाँ पे G ऑफ P लिखेंगे। P क्यों लिखा? प्राइस के लिए लिखा। सप्लाई इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ प्राइस, तो G ऑफ P हो गया। एंड यहाँ पे इन सप्लाई फंक्शन अगर मार्जिनल ये वर्ड है, सी मार्जिनल ये वर्ड का मतलब ही क्या होता है? स्लाइट चेंज। स्लाइट चेंज मतलब क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव्स। ये हमें समझना है। सो ये हो जाएगा मार्जिनल सप्लाई। सो यहां पे ये आ जाएगा एज व्हाट? द रेट ऑफ चेंज ऑफ, यहां पे आ जाएगा सप्लाई फंक्शन with respect to price is called as marginal supply, and marginal supply will be denoted as what? M dot S for marginal supply, and ये हो जाएगा rate of change of supply function with respect to price. Yes, we can say ये भी हो सकता है, और that is also equal to, ये हो जाएगा G dash of P. तो ये हो गया मेरा supply function का condition. Now we have the next condition that is called as total cost function. टोटल कॉस्ट फंक्शन का मतलब होता है, यस, एंड इट इज ऑलवेज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर C. सो यहाँ पे कैपिटल लेटर C इज इक्वल टू ऑल द कॉस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज विल बी कंसिडर्ड अंडर वन ग्रुप दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट फंक्शन। जैसे कि यहाँ पे होता है लेबर कॉस्ट, प्रोसेसिंग कॉस्ट, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट, जो भी कॉस्ट रिलेटेड एक्टिविटीज है वो सारे एक ही ग्रुप के अंदर काउंट करेंगे, एंड वो ग्रुप के अंदर काउंट करके वो फंक्शन जो बन जाएगा दैट इज कॉल्ड एज टोटल कॉस्ट फंक्शन, एंड उसको डिनोट किया जाता है बाय व्हाट? कैपिटल लेटर C. एंड ये जो C है दैट इज देयर इन जनरल टर्म्स एज व्हाट? इन टर्म्स ऑफ X. टोटल कॉस्ट फंक्शन जो है दैट विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ X, मतलब C विल बी देयर इन टर्म्स ऑफ X. सीधा जो भी दूसरे भी कॉस्टिंग है वो सब काउंट हो जाएगा इसके एक ही ग्रुप के अंदर. सो इसको बोला जाएगा एज व्हाट? टोटल कॉस्ट फंक्शन. देन इन दैट वी हैव द फोर्थ टर्म. यस, मतलब टोटल कॉस्ट फंक्शन के अंदर एक और टर्म बोल सकते हैं दैट इज कॉल्ड एज मार्जिनल कॉस्ट. मार्जिनल, वापिस से ये वर्ड आया मार्जिनल, मतलब यहां पे आएगा द रेट of change of cost function. Yes, rate of change of cost function is called as marginal cost. And in general term, marginal cost को denote किया जाता है as what? M dot C और C suffix M. And this is equal to, in general मैं लिखूंगा dc upon dx. क्यों dc upon dx लिखा? क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ कॉस्ट फंक्शन, एंड कॉस्ट फंक्शन जो है वो किसके टर्म्स में? x के टर्म्स में, तो dc upon dx आ जाएगा. अगर मेरा कॉस्ट फंक्शन q के टर्म्स में है तो dc upon dq आ जाएगा. तो जो कंडीशन, जो कॉस्ट फंक्शन जिसके टर्म्स में रहेगा, मतलब अगर मेरा क्वांटिटी को डिनोट किया जाता है बाय x यूनिट्स तो x के टर्म्स में रहेगा, q से डिनोट किया तो q के टर्म्स में रहेगा. तो ये हो गया मेरा फोर्थ टर्म दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. देन वी हैव समथिंग कॉल्ड एज एवरेज कॉस्ट. यस, ये एवरेज कॉस्ट को डिनोट किया जाता है बाय a डॉट c और c सफिक्स a. एंड व्हाट इज दिस इक्वल टू? तो ये हो जाएगा टोटल कॉस्ट upon total number of units. Yes, तो
टोटल कॉस्ट इसको डिनोट किया जाता है बाय सी एंड टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स इसको डिनोट किया जाता है बाय व्हाट एक्स. तो ये हो जाएगा सी सफिक्स ए या a डॉट सी इज इक्वल टू सी अपॉन एक्स. सी ये x कब, जब कॉस्ट फंक्शन x के टर्म्स में, अगर कॉस्ट फंक्शन q के टर्म्स में तो यहाँ पे c अपॉन q आ जाएगा. बट इन जनरल टर्म्स हम लोग कॉस्ट फंक्शन x के टर्म्स में कंसीडर करते हैं, इसलिए ये भी कंडीशन x के टर्म्स में लिखा और ये भी कंडीशन x के टर्म्स में लिखा. सो राइट नाउ हमने यहाँ पे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स के लिए अब तक 5 टर्म्स सीखे हैं. सो राइट नाउ विल मेक अ नोट ऑफ दिस पार्ट. Now we'll start with the next function, that is sixth one. Yes, and ये हो जाएगा total revenue function. And this total revenue function is denoted as RSA, and which is nothing but what? It is price into demand. Yes, इसको लिखा जाता है P into D. So capital R, that is total revenue, is nothing but what? जितना डिमांड है वो एंड जितना प्राइस पर यूनिट है. सो जितना भी क्वांटिटी रहेगा इनटू प्राइस पर यूनिट, इसको मल्टीप्लाई किया तो दिस इज नथिंग बट व्हाट? द रेवेन्यू व्हिच इज जनरेटेड, अमाउंट जितना आने वाला है फ्रॉम द बिजनेस. सो दैट इज कॉल्ड एज रेवेन्यू, दैट इज प्राइस इनटू डिमांड, वेयर P is price per unit, D is demand. So ये हो गया. Now ये sixth term हो गया. Now we have the seventh one, that is marginal revenue. Now when I use the term as marginal revenue, it is denoted by M dot R, or it is denoted as R suffix M. So this marginal revenue is nothing but what? The rate of change of revenue with respect to डिमांड. इसका मतलब यहां पे हो जाएगा R सफिक्स M, या फिर मैं यहां पे M डॉट R लिख रहा हूं, दिस इज इक्वल टू DR अपॉन डी हो जाएगा. इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ रेवेन्यू विद रिस्पेक्ट टू, ये हो जाएगा डिमांड. वही चीज यहां पे रिप्रेजेंट किया. सो ये हो गया मार्जिनल रेवेन्यू. एंड देन वी हैव द एथ टर्म एज एवरेज रेवेन्यू. यस, वापिस से ये वर्ड आ गया एवरेज रेवेन्यू, तो ये हो जाएगा ए डॉट आर और आर सफिक्स ए. सी वापिस से ये वर्ड आया, मतलब एवरेज, ये वर्ड वापिस आया. हमने ये एवरेज वर्ड देखा था एवरेज कॉस्ट में भी, तो वहां पे हमने क्या बोला था? इट इज टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल नंबर ऑफ यूनिट्स. यहां पे इन दिस केस दिस विल बिकम टोटल रेवेन्यू अपॉन टोटल क्वांटिटी. टोटल रेवेन्यू मतलब आर से डिनोट किया जाएगा, एंड टोटल क्वांटिटी इज सेम एज डिमांड, इसलिए मैंने स्लैश करके डिमांड लिखा. एंड इधर डिमांड बोला मतलब ये हो जाएगा डी. सो आर अपॉन डी दैट इज सेम एज, व्हाट इज आर? हमने देखा यहां पे ही आर ये रहा, व्हिच इज P into D अपॉन D. सो यहां पे एवरेज रेवेन्यू जो है दैट इज सेम एज ये D और ये D कैंसिल हो जाएगा, तो P दैट इज प्राइस पर यूनिट. सो एवरेज रेवेन्यू इज सेम एज द प्राइस पर यूनिट. तो ये हो गया मेरा एवरेज रेवेन्यू का कंडीशन. एंड देन नेक्स्ट टर्म व्हिच वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर इज बिजनेस के टर्म से, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म, दैट इज प्रॉफिट.
ये हो जाएगा प्रॉफिट फंक्शन। सो प्रॉफिट मतलब क्या होता है? यस, इट इज नथिंग बट सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। नाउ इन टर्म्स ओवर हियर, यहां पे सेलिंग प्राइस जो है दैट इज सेम एज व्हाट? प्रोडक्ट सेल करने के बाद जो पैसा आने वाला है। सेम वे ओवर हियर, जितना क्वांटिटी सेल होगा उतना पैसा बिजनेस में आएगा, एंड दैट इज कॉल्ड एज व्हाट? रेवेन्यू जनरेटेड। सो सेलिंग प्राइस इज एक्टिंग एज व्हाट ओवर हियर? रेवेन्यू। सो यहां पे मैं लिखूंगा इट इज रेवेन्यू जनरेटेड माइनस व्हाट? कॉस्ट। तो यहां पे आ जाएगा कॉस्ट फंक्शन। सो प्रॉफिट इज इक्वल टू आर माइनस सी, दैट इज रेवेन्यू माइनस कॉस्ट, एंड दिस इज ऑल्सो इक्वल टू, ये हो जाएगा सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। ये तो एकदम बेसिक है, बट यहाँ पे वो सेलिंग प्राइस का काम कौन कर रहा है? रेवेन्यू। एंड यहाँ पे ये कॉस्ट प्राइस का काम कौन कर रहा है? कॉस्ट फंक्शन। सो आर माइनस सी, एंड प्रॉफिट फंक्शन इज डिनोटेड बाय पाई। तो इसको डिनोट करेंगे बाय व्हाट? पाई। सी, इसको पी से डिनोट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर पी से डिनोट किया तो ये पी तो यहाँ पे प्राइस पर यूनिट का भी है। सो हियर वी नीड टू अंडरस्टैंड कि प्रॉफिट जो है दैट इज डिनोटेड बाय व्हाट? पाई। एंड ये पाई का मतलब 22/7 नहीं है या 3.14 नहीं है, दिस इज ओनली द डिनोशन फॉर व्हाट? प्रॉफिट टर्म। सो अगर ये 9 टर्म्स, सी हमने 5 टर्म्स पहले देखे थे, फिर ये 6, 7, 8 एंड 9, ये 9 टर्म्स अगर हमारे पास यहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, then you can easily solve sums based on this type, and that part is called as what? Application of derivatives. So with this, now we'll make a note of this part. I will start with sums based on this. That is from exercise 9.2, main question number 2. Yes, questions है, solve the following examples, ऐसा दिया है, and in that we have the first question as, the demand D for a price P is given as D is equal to 27 upon P. Find the rate of change of demand when price is 3. Now try to understand this. The demand function D ऐसा बोला है, तो D is the demand function which is there in terms of price, जिसका वैल्यू उन लोग ने दिया है D is equal to 27 upon P. So demand is a function of price, है ना? प्राइस के टर्म्स में यस है। अच्छा, अभी उन लोग ने क्या बोला है? फाइंड द रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज आया ऑफ क्या बोला है? डिमांड when the price, मतलब डिमांड का चेंज विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस हुआ। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड विथ रिस्पेक्ट टू प्राइस, इसको बोला जाता है व्हाट? इनडायरेक्टली ये मुझे मार्जिनल डिमांड का वैल्यू पूछा है, एंड वो भी कब? जब प्राइस कितना है? 3। सो सिंपल टर्म्स में यहां पे मैं लिखूंगा, सिंस मुझे रेट ऑफ चेंज बोला है, रेट ऑफ चेंज का बेसिक मीनिंग होता है डेरिवेटिव्स। सो रेट ऑफ चेंज मतलब डिफरेंशिएटिंग, तो इधर लिखूंगा डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? P। क्यों? क्योंकि डिमांड जो है वो प्राइस के टर्म्स में, और उन लोगों ने दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिमांड व्हेन प्राइस, मतलब विद रिस्पेक्ट टू प्राइस हुआ। सो ये हो जाएगा DD अपॉन DP, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा D अपॉन DP ऑफ 27 अपॉन P। सो ये 27 कांस्टेंट है with the function, तो ये कांस्टेंट बाहर आ जाएगा। सो ये हो जाएगा 27 into D by DP of 1 upon P। ये हो गया मेरा DD upon DP का वैल्यू। This DD upon DP itself is called as what? Marginal demand बोलते हैं इसको, एंड ये आ जाएगा, this is equal to ये 27, ये डेरिवेटिव ऑफ 1 अपॉन x जैसा है, अगर विथ रिस्पेक्ट टू x होता है, तो यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू p है। सो 1 अपॉन x, ये मेरे स्टैंडर्ड लिस्ट ऑफ कैटेगरी में है। व्हाट इज 1 अपॉन x का डेरिवेटिव? द आंसर फॉर दैट इज -1 अपॉन x स्क्वायर। तो आंसर फॉर दिस
1/p, ये हो जाएगा -1/p का स्क्वायर। सो यहां पे मैं लिखूंगा dd/dp इज इक्वल टू -27/p स्क्वायर। सो यहां पे आ जाएगा dd/dp एट p इज इक्वल टू 3 पूछा है उन लोगों ने, व्हेन प्राइस इज 3, तो एट प्राइस 3 ये हो जाएगा -27/3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा -27/9 और ये हो जाएगा -3। ये किसका वैल्यू है? dd/dp का वैल्यू व्हेन द प्राइस इज 3, उसका वैल्यू आ रहा है -3। नाउ वी नीड टू अंडरस्टैंड ओवर हियर कि ये जो वैल्यू नेगेटिव आ रहा है, ये नेगेटिव वैल्यू का इंपैक्ट क्या होता है? सी जनरली जब देखा जाए तो ये वैल्यू माइनस, मतलब डिमांड सप्लाई, ये कोई क्वांटिटी माइनस में नहीं हो सकता है। सो ओवर हियर इसका इंटरप्रिटेशन हमें ये समझना चाहिए कि जब प्राइस 3 रुपीज है, रेट ऑफ डिमांड जो है वो क्या हो रहा है? नेगेटिव हो रहा है, मतलब डिमांड जो है वो डाउनवर्ड जा रहा है, मतलब डिमांड जो है वो फॉल हो रहा है व्हेन द प्राइस इज 3 रुपीज। इसका मीनिंग ये होता है कि रेट ऑफ डिमांड जो है दैट इज फॉलिंग डाउन व्हेन द प्राइस इज 3 रुपीज। ये इसका मीनिंग होता है -3 का मतलब। सो ये हो गया मेरा फर्स्ट क्वेश्चन एंड नाउ विल सी क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 यहां पे दिया गया है एज if for a commodity the price demand relation is given as D is equal to P plus 5 upon P minus 1. Find the marginal demand when the price is 2. So यहां पे क्वेश्चन में दिया गया है as D is equal to P plus 5 upon P minus 1। ये है मेरा डिमांड फंक्शन एंड मुझे क्या बोला है? प्राइस डिमांड रिलेशन इज गिवन, फाइंड मार्जिनल डिमांड। मार्जिनल डिमांड मतलब ये डिमांड है ना, इज देयर इन टर्म्स ऑफ प्राइस? यस। सो मार्जिनल डिमांड मतलब यहां पे क्या आएगा? डिफरेंशिएटिंग दिस विद रिस्पेक्ट टू क्या आएगा? P। ये हो जाएगा dd/dp। सो यहां पे dd/dp लिखा, यस इसको डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू P। न्यूमरेटर में मुझे P वाला टर्म दिख रहा है, डिनोमिनेटर में P वाला टर्म दिख रहा है, मतलब यहाँ पे U/V रूल अप्लाई होगा। व्हाट इज U/V रूल? तो ये हो जाएगा V इंटू डेरिवेटिव ऑफ U माइनस U इंटू डेरिवेटिव ऑफ V होल डिवाइडेड बाई V स्क्वायर। सो ये हो जाएगा dd/dp, दिस इज सेम एज मार्जिनल डिमांड। यस उन लोग ने वर्ड यूज किया है कि इट इज यू नीड टू फाइंड द मार्जिनल डिमांड। सो ये हो जाएगा P minus 1 डेरिवेटिव ऑफ P plus 5, मतलब डेरिवेटिव P के साथ भी जाएगा एंड डेरिवेटिव 5 के साथ भी जाएगा, माइनस यहां पे आ जाएगा P plus 5 एक ब्रैकेट में, अब डेरिवेटिव यहां पे भी दोनों टर्म के साथ जाएगा, तो d/dp ऑफ P minus d/dp of 1 whole divided by P minus 1 the whole square. This is equal to, ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में P minus 1, डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू P ये 1 हो गया, डेरिवेटिव ऑफ खाली 5 ये कांस्टेंट है, ये 0 हो जाएगा, माइनस ये ब्रैकेट में आ जाएगा P plus 5, ये ब्रैकेट में आ जाएगा डेरिवेटिव ऑफ P विथ रिस्पेक्ट टू P ये 1 हो गया, डेरिवेटिव ऑफ खाली 1 ये 0 हो गया, होल डिवाइडेड बाय P minus 1 द होल स्क्वायर। ये है मेरा मार्जिनल डिमांड का वैल्यू। उसके बाद यहां पे आएगा मार्जिनल डिमांड इज इक्वल टू, ये हो जाएगा P minus 1 into 1 आ रहा है माइनस P plus 5 एक ब्रैकेट में into 1 आ रहा है अपॉन P minus 1 द होल स्क्वायर। सो P minus 1 into 1 मतलब ये हो जाएगा P minus 1 माइनस ये P plus 5 into 1 ये हो जाएगा P plus 5 एक ब्रैकेट में डिवाइडेड बाय P minus 1 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा P minus 1 minus P minus 5 अपॉन P minus 1 द होल स्क्वायर।
ये और ये कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा -1 -5 -6 अपॉन p -1 द होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट, dd अपॉन dp या फिर मार्जिनल डिमांड। एंड उन लोगों ने मुझे पूछा है मार्जिनल डिमांड व्हेन द प्राइस इज 2 -6 अपॉन 2 -1 द होल स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 अपॉन 2 -1 1 होता है, 1 का स्क्वायर। ये हो जाएगा -6 अपॉन 1 विच इज इक्वल टू -6। ये है मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट, मार्जिनल डिमांड व्हेन द प्राइस इज 2। सो विद दिस these two questions are done. We make a note of this part. We'll start with the next question. That is question number 3. थर्ड सब में दिया गया है the demand function of a commodity is given as P is equal to 20 plus D minus D square. Find the rate at which price is changing when demand is 3. So यहाँ पे P का वैल्यू दिया है, this is equal to 20 plus D minus D square. Find the rate at which price is changing. Rate of change of price when demand is 3. मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस मतलब dp अपॉन dd ढूंढना है। सो यहां पे सिंपल है, डिफरेंशिएट करो इसको विथ रिस्पेक्ट टू क्या आएगा, d। ये हो जाएगा dp अपॉन dd इज इक्वल टू d बाई dd ऑफ, ये हो जाएगा 20 प्लस d माइनस d स्क्वायर। ये प्लस एंड माइनस मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन रूल अप्लाई होगा। d अपॉन dd ऑफ 20 प्लस d by dd of d minus d by dd of d square। तो ये हो जाएगा dp अपॉन dd इज इक्वल टू खाली 20 मतलब कांस्टेंट, तो इसका डेरिवेटिव 0। डेरिवेटिव ऑफ d विथ रिस्पेक्ट टू d ये हो जाएगा 1 एंड डेरिवेटिव ऑफ दिस ये हो जाएगा -2d। तो ये आ जाएगा 1 माइनस 2d। अच्छा यहाँ पे ये 2d क्यों आया, क्योंकि ये d स्क्वायर है, मतलब ये x रेज टू n जैसा है। एंड x रेज टू n का डेरिवेटिव क्या होता है, n इंटू x रेज टू n माइनस 1, मतलब ये 2 माइनस 1 होता है। तो यहाँ पे 1 लिखा नहीं लिखा फर्क नहीं पड़ेगा, इसलिए ये 2d आया एंड ये हो गया 1 माइनस 2d। ये हो गया dp अपॉन dd का वैल्यू। एंड उन लोगों ने पूछा है रेट ऑफ चेंज ऑफ प्राइस व्हेन डिमांड इज 3। ये हो जाएगा 1 माइनस 2 इंटू 3, ये हो जाएगा 1 माइनस 6, ये हो जाएगा -5। सो यहाँ पे ये हो गया dp अपॉन dd at d equal to 3. So with this question is done. Now we start with the next question, that is question number 4. So यहाँ पे question number 4 जो है, if the total cost function is given by c is equal to, टोटल कॉस्ट c से डिनोट किया है विच इज देयर इन टर्म्स ऑफ x, ये है 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7। यहां पे पूछा गया है फाइंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4। अच्छा अब पहले क्या ढूंढने बोला है, एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज एवरेज कॉस्ट, c सफिक्स a या फिर a डॉट c इज इक्वल टू, ये हो जाएगा c अपॉन x, दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय क्या आएगा x। सो यहाँ पे c सफिक्स a। अच्छा अभी क्या बोला है यहाँ पे, फाइंड एवरेज कॉस्ट एंड मार्जिनल कॉस्ट व्हेन x इज इक्वल टू 4। सो ये एवरेज कॉस्ट फंक्शन मिल गया, तो इसका वैल्यू मुझे चाहिए कभी जब x का वैल्यू क्या है 4। सो दिस इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 5 इंटू 4 का क्यूब प्लस 2 इंटू 4 का स्क्वायर प्लस 7 होल डिवाइडेड बाय 4। ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट 4 क्यूब इज 64 प्लस 2 ब्रैकेट 4 स्क्वायर मतलब 16 प्लस 7 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 4।
इसका आंसर ये हो जाएगा 320 प्लस ये हो जाएगा 32 प्लस 7 डिवाइडेड बाई 4. So this value is equal to 359 by 4. ये हो गया मेरा वैल्यू ऑफ व्हाट एवरेज कॉस्ट एट x इक्वल टू 4. एंड साथ में यही क्वेश्चन में उन लोगों ने एक और चीज पूछा है, दैट इज फाइंड मार्जिनल कॉस्ट. अच्छा, यहां पे ये कॉस्ट फंक्शन है, कॉस्ट फंक्शन को डिफरेंशिएट किया विथ रिस्पेक्ट टू, यहां पे x के टर्म्स में तो विथ रिस्पेक्ट टू x. सो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x ये हो जाएगा dc by dx which is denoted as c suffix m. This is equal to d by dx of ये हो जाएगा 5x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर प्लस 7. सो यहां पे दिस वैल्यू इज इक्वल टू, यस डेरिवेटिव हर टर्म को जाएगा, तो डेरिवेटिव हर टर्म को जाएगा तो ये 5 कांस्टेंट है बट फंक्शन के साथ है, तो 5 बार d by dx of x क्यूब प्लस 2 बार d by dx of x स्क्वायर प्लस d by dx of 7. ये हो जाएगा 5 ब्रैकेट, ये आ जाएगा x रेज टू n, तो इसका आंसर होता है n इंटू एक्स रेज टू n माइनस 1. ये हो जाएगा 3 इंटू एक्स रेज टू 3 माइनस 1 मतलब 2 हो जाएगा, प्लस ये 2 आ जाएगा ब्रैकेट डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा एक्स रेज टू n वापिस से, तो ये हो जाएगा 2x रेज टू 2 माइनस 1, तो 2x हो गया, प्लस खाली कांस्टेंट है उसका आंसर क्या आ जाएगा 0. सो दिस इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15x स्क्वायर प्लस 4x, एंड इसको मैं डिनोट करूंगा एज व्हाट c सफिक्स f, दैट इज मार्जिनल कॉस्ट. एंड ये मार्जिनल कॉस्ट ढूंढना है जब x का वैल्यू 4 है. सो ये हो जाएगा 15 इंटू ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर प्लस 4 इंटू 4 इज इक्वल टू ये हो जाएगा 15 इंटू 16 प्लस 16. 15 इंटू 16 किया ये हो जाएगा 240 प्लस 16 विच इज इक्वल टू 256. तो c सफिक्स f at x equal to 4. Yes, एक ये वैल्यू हो गया, ये वैल्यू हो गया. So with this question number 4 is also done. Now we'll make a note of this part. Now we all have copied this question. So with this, we'll end the session over here. But please revise the concept of this session. Thank you.